episode of Mind Your Business. I'm Purani here, and today we have a special guest with us. His name is Mr. Rahul. Hello. Welcome to my podcast. Hello. Just to start with, could you tell our listeners a little bit about you? What do you do? And quick insights if you can give them about you. Okay, so we moved here. So if we go back and how we end up, so I'm not from Gujarat. Okay. I'm from northern part of India, that is Uttar Pradesh. Yeah. So we moved here in 2007, Okay. and basic studies यहाँ से ही हुई. Yeah. And then I completed my bachelor's of business administration, this BBA from MS. So बड़ौदा में काफ़ी लोग को पता है MSU. So after that, I moved to Mumbai as well, थोड़ा further studies के लिए, and then थोड़ा टाइम वहाँ पर जॉब भी किया. But then I came back here after COVID. So उसके बाद से अभी इधर ही सेटल हैं, इधर ही देख रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे कैसे मूव करना है. So त्यागीज कैफ़े स्टार्ट किया है. So इसी फील्ड में अब आगे कैसे बढ़ सकते हैं और आगे क्या क्या करना है, उसका पूरा जर्नी स्टार्ट, एक नया जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. Okay, so are you from a like commerce background? Do you've done Yes. what is So your qualification? yeah. So BBA is commerce stream. Then I have my post grad in marketing, and I did that from Mumbai. So फिर job का experience भी is more or less in marketing field only. अच्छा. So I worked in a company called Marcus Evans, and they are into corporate events. So उसी field में हैं अभी तक तो. Nice. So the best part about you and why we have him today in our podcast is he's the first generation entrepreneur. Okay. So yeah, now give more insights about that journey. Since you don't hail from a business family, and you decided after the job that you did in marketing to do entrepreneurship. So tell me about that. And adding on to that, also I want to ask, why cafe out of all the other business? Okay. So I won't sugarcoat it. Business, if you don't have any background in business, or if you're the first generation, it's difficult. Okay. इसमें कुछ दो राय नहीं है. It's Yeah. difficult. Okay. So सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि you don't have anyone who can personally teach you क्या challenges होंगे, या what you can do different. So you have to fall down every time and then pick yourself up. So वो पूरा एक process होता है. It's so far my experience is very good. Uh, so I can talk both sides, right? So I have experience of service industry as well. जॉब भी मैंने किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, टोटल 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो भी किया है, और अब 2 साल इसको भी हो गए हैं. दोनों के अपने प्रोज अपने कॉन्स हैं डेफिनेटली. So when I was in Mumbai, the job was very good. जैसा मुझे चाहिए था वैसा था, and team was very good, pay was very good. However, वो event industry से belong करती थी company. So when COVID struck, पूरा industry, so वो इफेक्ट सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इवेंट्स को और फूड इंडस्ट्री को, जिम्स को, इनको बहुत देखने मिला था. So first 4-6 months I got my free salary because so luckily I moved on the very next day जब कोविड लॉकडाउन अनाउंस किया था. So luckily I was here, मुंबई में नहीं फंसा था मैं. But after a point, I thought that I need to do something. I can't sit idly for I don't know how many days, how many months. COVID कब तक चलेगा, lockdown कब तक चलेगा, no one had any clue. So I started doing some research. So पहले ऐसा कोई plan नहीं था कि we'll start a cafe or we'll enter in food industry. I was planning to move into manufacturing. तो आई डिसाइडेड टू डू कि अपना खुद का कुछ करना है, बिकॉज जॉब करके देख ली थी. और सो बहुत लोग जो जॉब करते हैं दे नो कि एफर्ट्स वहाँ पर भी बहुत जाते हैं, बहुत बहुत एफर्ट्स जाते हैं. सो आई थॉट कि इतनी मेहनत अगर कर ही रहे हैं, सो एक बार अपने लिए कर देख लेते हैं. कि मतलब देयर वाज अ टाइम
मुझे इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं समझ आया था अपनी जॉब का, सो फॉर अ होल वीक आई हार्डली गॉट स्लीप ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो शिफ्ट का टाइम भी थोड़ा ऐसा था और उतना टाइम नहीं मिल पाता था। मुंबई में आधा टाइम तो ट्रैफिक खा जाता है। Definitely. तो वही एक बेसिक जो ट्रिगर होता है कि क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका यही था कि You get दूसरों flexibility in business than job. Yeah, I think because यस यू कैन से दैट, बट वो भी है कि तुम्हारा सैटरडे संडे भी तुम्हारा नहीं है, राइट? वो उसका एक नुकसान ये भी है कि सैटरडे संडे नहीं मिलने वाला है। जॉब का ये फायदा है कि भाई सैटरडे अपना फ्राइडे को खत्म हो गया, सैटरडे संडे जो करना है करो, अपनी शिफ्ट खत्म हुई, जो करना है फिर कर सकते हो। पर फिर तुम उसका भी है कि यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। वो एक वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल फैक्टर यही था अभी तक, क्योंकि जब स्टार्ट किया था आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। और एंड आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई एम and फ्रॉम yeah, you were मार्केटिंग telling इंडस्ट्री। sorry that manufacturing you wanted to start. Yes, So yes, वो sir, workout yep, नहीं yep, हुआ, is yep, it yep, like? yep. No, वो वर्कआउट नहीं हुआ ऐसा नहीं है। सो आई वाज डूइंग रिसर्च कि क्या क्या कर सकते हैं, एंड बचपन से आई थिंक इंडिया में हर लड़के का सपना होता है कि अपना कुछ कैफे होटल रेस्टोरेंट कुछ खोलना है। मेरा भी था। बाकी लोगों का तो पता नहीं, मेरा था। तो मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया, जब कर्फ्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, सो आई स्टार्टेड माय रिसर्च के कितने कैफेज और रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, क्या चैलेंजेस थे, क्यों बंद हुए हैं, क्या यही सिर्फ एक रीज़न था कि कोविड के अंदर उनका रेवेन्यू रुक गया था, या और कोई भी रीजंस थे। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि कंपटीशन बहुत कट डाउन हुआ है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल कैफेज और रेस्टोरेंट्स थे दे कुडंट बेयर द कॉस्ट, क्योंकि रेंट फिर भी जा रहा था। बहुत लोगों से Overhead रेंट, expenses यस, और बहुत दीज आर फिक्स correct. एक्सपेंसेस, सैलरी रेंट देना ही देना है, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ था नहीं। सो बहुत कंपटीशन कट डाउन हुआ था। सो वो एक रिलायबल रीजन लगा मुझे कि वी कैन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। आइडिया देखो, मुझे मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ नहीं है, आइडिया मुझे फूड इंडस्ट्री का भी कुछ नहीं है। सो दोनों ही जगह पे सीखना तो सीखने, या इट वाज नेसेसरी कि सीखना तो है ही। तो आई थॉट कि यहाँ पर एक चैलेंजेस ऑब्वियसली होने वाले हैं, बट कंपटीशन अभी अभी कट हुआ है। सो अभी अगर स्टार्ट, ओके, इट वाज अ बिग रिस्क, ठीक है, क्योंकि बहुत यू डोंट नो कब वापस से लॉकडाउन लग जाए, और आफ्टर ऑल दैट इन्वेस्टमेंट वापस से अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम रुक गया या बंद हो गया, तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? सो रिस्क डेफिनेटली था, काफ़ी बड़ा रिस्क था। आई वाज स्कैर्ड, बट माय फादर हेल्प्ड अ लॉट, और ही सेड कि अगर तुझे ये लग रहा है कि कर सकता है तो गो फॉर इट। तो मैन्युफैक्चरिंग में जब इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया, तो मुझे अंदर से भी ऐसा फील हुआ कि भाई ये वाला मुझे करना है। तो आई थॉट कि अगर चैलेंजेस आएंगे भी तो मेरा डिसीजन होगा कि इस इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन मेरा था। सो आई विल बी एबल टू कीप अप विद दोज चैलेंजेस। इस इंडस्ट्री में आने का ये एक रीज़न था, कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है या पास्ट एक्सपीरियंस है, वो कोई रीज़न नहीं था। दोनों ही चीज़ बहुत नई होती। सो So that's why. So it's yes, been 2 years. This almost, gap has almost, been almost. So we started in July 1. 2021. Yes. So तब start किया. So the first month was very disappointing because कर्फ्यू तब हटा ही था, और फुल कर्फ्यू नहीं था, बट 10 बजे तक का तो था ही, 9 बजे तक का था आई गेस वो टाइम पर। सो फर्स्ट वीक was very disappointing because not a single customer walked in, not a single one, and it was very disappointing, और बहुत डिमोटिवेटेड भी फील हो रहा था कि शिट, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। But I can still, it still gives me goosebumps. The first customer that walked in, and we served him. So two guys came in. I don't remember their name, but they came in, they ordered, and they loved our food. और उन्होंने बहुत तारीफ करी, and that was our first sale, first customer, and they appreciated what we catered to them, and that boosted our morale, mine, my teams. So that was a big push. So वो खुशी, उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि customers started lining up, but that one order helped a lot to survive next few months. So that was the core motivation for us. So वहाँ से फिर start हुई, and then we didn't stop. Now we are doing very well.
and I'm Yeah, glad that I definitely. didn't stop. Because one thing about the location of this cafe, since it's in prime location of Baroda, Yeah. Kapuri is always. So for the listeners and especially shout out to Baroda people, you will know what we are talking about. And others city listeners, you can figure out, Google it. So now with regard to your investment and funding, when before you started your business, you would have worked out कि क्या करना है कैसे करना है, because I'm sure जिसको भी startup करना है, they all that concern और सुई उधर ही अटकती है कि पैसे कहाँ से लाएंगे. तो tell me about that actually. Okay, so again, my father helped out a lot. हमने कहीं से लोन नहीं लिया, but we pitched in, our relatives pitched in, and my father helped a lot. And then इधर उधर से थोड़ा और we accumulated enough fund जो मुझे at least तब तक लगता था कि इतना we need at least to start to get it through at least first month. So you know you will have to pay salary, you will have to pay the rent on the first month itself. But then what about the interiors, the costing for interiors also, buy your furniture, Yeah, so say equipments in your kitchen and all that. So I met with a lot of people who do this interior designing, and so first of all, the first step was deciding the location. Yeah. So पहले मैंने मांजलपुर में देखा था. This was pure luck, this place, and I'm glad that day I had that meeting and I went. So what happened was I finalized this place in Manjalpur. It was on first floor, so it was Rama Complex, I guess that's the name of it. So वहाँ पर first floor पे we decided that yes we'll go with this one. Uh, the rent was around 40,000, 40 or 50,000, uh, but it was 1,600 square foot. Uh, but the day we were going to sign the agreement, I had a meeting in Alembic with another interior designer. So he suggested that there's this place जो खाली है, लॉकडाउन से पहले वो बंद हो गई थी, सो यू कैन गो एंड विजिट, देख लो एक बार कैसा है. सो मैं अलकापुरी में इतना घूमा नहीं हूँ बिकॉज मैं इधर इतना रहा नहीं हूँ. जब घूमने का टाइम था तब मैं मुंबई में था. तो अलकापुरी का इतना आइडिया नहीं था मुझे, बट ढूंढ ढांड के कैसे ना कैसे मैं इधर पहुंचा. एंड द मोमेंट आई सॉ दिस प्लेस आई लव्ड इट. So it's surrounded with trees and a lot of greenery. Outside space अलग है, outside setting के लिए indoor अलग है, अच्छा space है. So मैंने बहाना मार दिया जहाँ पर एग्रीमेंट होने वाला था कि 2 दिन और रुको, 2 दिन दो मुझे एंड देन विल फाइनलाइज इट. बट वो इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे ये जगह एक बार ढंग से देखनी थी. तो so it was pure luck. So but this is Alkapuri, right? So the rent here is almost double जो वहाँ पर रेंट देखा था. बट आई लव दिस प्लेस सो मच. सो अगेन इतना सारा रेंट निकालने के लिए हाउ मच सेल्स यू नीड इन अ मंथ That was my, yeah. इज अ बिग क्वेश्चन. और उसका कोई आइडिया नहीं था बिकॉज एक्सपीरियंस तो कुछ है ही No नहीं. experience, yeah. तो नहीं पता है कि कब से सेल स्टार्ट होगा या उतना सेल इनफ भी रहेगा. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या रखनी है, क्या उतना फुटफॉल होगा और इतनी प्राइसिंग होगी तो वो मैच हो पाएगा ओवरहेड्स के साथ. तो हम लोग, सो दिस इज 2 शॉप्स. तो पहले हम सिर्फ आधा ही लेने वाले थे बिकॉज वो रेंट एंड दैट रेंट वुड हैव बीन सेम देन. Yeah, yeah. सो मेरे दिमाग में वही था, मुझे सिर्फ वही टेंशन, एक कांस्टेंट टेंशन एक वही थी कि उतना इतना ज़्यादा रेंट निकल पाएगा कि नहीं. क्योंकि अगर कम रेंट है तो एक बार आप फिर भी अपनी पॉकेट से निकाल के चला सकते हो, बट उतना ज़्यादा रेंट कब तक पॉकेट से निकालोगे. एंड मैंने प्लान किया था इस हिसाब से कि फर्स्ट 6 मंथ अपनी पॉकेट से निकालना पड़े, उतना मेरे पास फंडिंग होना चाहिए. होना चाहिए. क्योंकि आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो तो ऐसा तो होने नहीं वाला है कि डे 1 से पीपल विल स्टार्ट लाइनिंग अप. इट टेक्स टाइम फॉर देम टू नो कि ऐसी कोई जगह खुली है. एंड वो टाइम भी ऐसा था कि पीपल वर लिटिल Hesitant रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ टू गो आउट एंड ईट, राइट. सो वो भी एक, सो अनसर्टिनिटीज तो बहुत ज़्यादा थी. और हर पॉइंट पे ऐसा लगता था कि यार ये थोड़ा सस्ता वाला ले लेते हैं, ये सेकंड हैंड ले लेते हैं, इधर कॉस्ट बच जाए. और वो किया भी हमने. जहाँ पर कॉस्ट बचा सकते थे वी डिड. जहाँ पर ज़रूरत ही थी कि क्वालिटी चाहिए ही चाहिए, वहाँ पर वी डिड नॉट कि वो तो चाहिए ही चाहिए. तो वो पूरा प्लानिंग किया हमने, पूरा मेन्यू रेडी किया.
जगह डिसाइड करने से पहले. सो Okay. आई प्लान्ड इट बोथ वेज कि अगर मांजलपुर में खोलते हैं तो मेन्यू क्या रहेगा और उसकी प्राइसिंग्स क्या रहेंगी, एंड अगर अलकापुरी में खोलते हैं तो उसका मेन्यू क्या रहेगा और उसके रेट्स क्या रहेंगे. बिकॉज दोनों बहुत अलग जगह हैं, दोनों का कस्टमर बेस बहुत अलग है दोनों जगहों का. जो लोग मांजलपुर में जाएंगे वो अलकापुरी में नहीं जाएंगे, Correct. जो अलकापुरी में जाएंगे वो मांजलपुर में नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों के कस्टमर बहुत अलग हैं. सो वो एक चीज़ डिसाइड करी कि कैसे कैसे होगा. एंड देन हमारे एक जानने वाले हैं, सो वो मेरे फादर के फ्रेंड हैं, बट काफ़ी अच्छा रिलेशन है उनके साथ. सो दे आर इन टू बिजनेस, Yeah. they have their own factory and they have a lot of experience in it. So they said कि देखो, अगर अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा है, तो तुम्हारा जब एक पॉइंट के बाद अर्निंग होगा वो भी उसके हिसाब से ही होगा. मैंने वो चीज़ सोची भी नहीं थी कि तुम स्पेस कम लोगे तो लोग को बैठाने की जगह भी कम होगी, और वो चीज़ मेरे दिमाग में आई भी नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक भी नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है. सो वो उन्होंने सजेस्ट किया एंड दे helped a lot in with regards to sharing their experiences and क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए. सो दैट हेल्प्ड अ लॉट. फिर धीरे धीरे हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इसी चीज़ के साथ वी आर गोइंग. हाँ, दिस दिस ये जगह को फाइनल कर देते हैं, इस पे दिल आ गया है. और अगेन इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. तब बहुत डर डर के लिया था, बट नाउ आई एम ग्लैड के लिया था. सो ये था कि यहाँ बाय अलकापुरी, दूसरी जगहों पर जा सकते थे बट स्टिल बाय अलकापुरी. और यहाँ पर अब जो कस्टमर्स हैं उनको भी ये जगह इसलिए इतनी पसंद आती है क्योंकि थोड़ी सिक्लूडेड है, मेन रोड पे नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा अंदर जाकर है. शोर शराबा रोड का इतना नहीं है, काफ़ी कम है, इट्स वेरी मिनिमल. सो लोग जो पीस ढूंढते हैं, जो शांति से बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा चिल टाइम लेने आए हैं, उनको वो इधर मिलता है. या वो, और वो भी वही तारीफ करते हैं कि हमें बहुत सूदिंग लगता है, बहुत पीसफुल लगता है. सो वो चीज़ शायद ना हो पाती अगर मैं मांजलपुर में खोलता तो. Now about your menu when you do it, so आपने you did refer other places menu, especially now since you've frozen on this place, Hmm. Silkapuri, where your work started, के menu and designing menu, what all to keep rates. To your competitors within this area, did you also search the menu, or you being a marketer, maybe रेकी की होगी कि मैं थोड़ा जाके देख जाऊँ. हाँ हाँ. सो मैं कभी कैफ़े में इतना घूमा नहीं हूँ. जब मैं बड़ौदा में था तब भी नहीं, या जब मैं मुंबई में था तब भी इतना नहीं घूमा हूँ कैफ़ेज़ में. कभी किसी का बर्थडे है और वो उधर ट्रीट दे रहा है तो उसने डिसाइड किया भाई अब वहाँ ही जाना पड़ेगा तो तब सिर्फ मैं वहाँ चला जाता था. बट जब ये डिसाइड किया कि अब यहाँ पर ये खोलना ही है, सो यू ऑब्वियसली नीड सम इनसाइट कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख के ही सीख लो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग. तो कॉम्पिटिटर को स्टडी करना इज द बेस्ट वे कि आप सीख सकते हो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग इट. Yes. हाँ, सो मैं जब रिसर्च भी कर रहा था तो वहाँ जाता था, उनकी डिशेस को टेस्ट करता था, उन्होंने क्या रेट्स रखे हैं वो रखता था, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो कैसे सर्व कर रहे हैं, वो सब चीज़ मैं नोट डाउन करता था. और अब तो ये इतना बैक ऑफ द माइंड ही होता है. मैं कहीं दूसरी जगह भी अगर किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग क्या वो मेरा जा चुका है सुख, सिर्फ बैठ के खाने का मैं देखता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ कैसे हो रही है. तो This and then okay, menu के बाद how did you find the staff, because this industry, या सो मेरा एक फ्रेंड and है. या तो आपने ट्रेनिंग दी हो उसको, because आपको भी नहीं, I don't know if you know cooking, that I can add question. मैं मैगी बना लेता था पहले, सिर्फ, बस उससे आगे कुछ नहीं, और चाय बना लेता था. Okay guys, if you can make Maggie and tea, you can open a cafe maybe. Okay. Okay. तो मेरा एक फ्रेंड है पार्थ काबरा करके, सो उसका पहले कैफ़े था, सो उसके पास एक्सपीरियंस था थोड़ा कि क्या है, एंड उस ही गेव मी द कॉन्टैक्ट्स कि यू कैन कॉल दिस गाय, हिल. Reference हाँ जैसा. हाँ हाँ. सो वो बता देगा, यहाँ से यूल गेट द स्टाफ. और फिर काफ़ी मीटिंग्स करी, घर पर ही टेस्ट होता था. तो wow. उनका इंटरव्यू तो वही है ना कि मेक समथिंग गुड फॉर अस या कुक समथिंग गुड फॉर अस. तो वो भी आई गेस आई डिड
6 So to मेनू 7। के बाद आपने हायरिंग किया या हायर करके सैट विद द शेफ को एक बेसिक मेन्यू तो फाइनल कर ही लिया था कि नो सो से पिज्जा है पास्ताज एंड हम्म व्हाट ऑल, पर आना भी तो चाहिए उनको. हाउ डिड दैट? सो जो मैंने द फर्स्ट गाय दैट हायर्ड, उसको वो मैंने डिसाइड किया था कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वाला हायर करूँगा, बिकॉज मेरा लैक ऑफ एक्सपीरियंस को वो हेड शेफ काइंड ऑफ. हाँ वो मुझे नहीं पता, बट उसको तो पता ही होगा, वो इतने टाइम से काम कर रहा है। तो मैंने ऐसा ही स्टाफ हायर किया स्टार्टिंग में, जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग कि भाई कौन सी चीज़ कैसे बन रही है। मैं लेजिट वहाँ खड़ा रहता था ऐसे बैठ देख के, और वहीं खड़ा हूँ और क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं लिखता था हर रेसिपी को, कौन सी चीज़ कितनी देर तक बॉईल हो रही है और कितनी देर तक क्या उसमें कितना मेरे पास अभी भी लिखा हुआ है, ml के हिसाब से मैंने सब लिखा हुआ था कि कौन सा चीज़ में कितना क्या जाता है। बिकॉज अगर मुझे इन एंड आउट नहीं पता है मेरे बिजनेस का, तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा। अब इतना सीख लिया है कि मैं खुद बना सकता हूँ सब कुछ। आई कैन कुक एवरीथिंग, जितना भी मेन्यू में है वो सब बना सकता हूँ, और दूसरों को सिखा भी सकता हूँ। हाउ मेनी स्टाफ यू हैव? राइट नाउ आई हैव 3। सो हाँ, वो उसमें क्लीनर वगैरह तो अलग हो गए, बट प्रॉपर फिक्स स्टाफ आर 3। यप, एंड इट्स इनफ, बिकॉज अब मैं भी खुद को एक स्टाफ की तरह कंसिडर करता हूँ। एक बहुत अच्छा तो पता नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ बॉस, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एम्प्लॉय टू। क्योंकि अगर आप भी काम नहीं करेंगे तो आपको एक और एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो वो काम करेगा, राइट, एटलीस्ट एट इनिशियल स्टेज। एक बार आपका पूरा बिजनेस सेटअप हो चुका है, इट्स स्ट्रीमलाइंड, सब कुछ आपके बिना भी हो सकता है, देन यू कैन हायर वन पर्सन, you can add on your staff, and then you can focus your energy, your time, your resources somewhere else, maybe to expand, maybe into some other field. That's what I'm doing right now. अब कैफे उतना सेट हो चुका है that I can focus on other things as well, so that now I can do it. But starting में ही अगर मैं वो नहीं करता, so पहले तो मैं सीख नहीं पाता, सेकंड मुझे एक और एक्सपेंस बेयर करना ही पड़ता, बिकॉज मेरे हाथ बंध जाते, क्योंकि अगर कोई स्टाफ काम नहीं करेगा तो मुझे करना आता नहीं है। Yeah, you become handicapped and राइट, एग्जैक्टली, yeah, वो दैट्स द वर्ड। yeah. सो इन एंड आउट आपको पता होना ही चाहिए, कोई भी बिजनेस हो। उसके बाद ही आपको छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं, व्हाट यू कैन डू डिफरेंट, हाउ यू कैन चेंज और ट्वीक द रेसिपीज टू मेक इट बेटर, वो चीज़ आप तभी कर सकते हैं। आपका एक पर्सनल टच तभी आएगा, राइट। अगर नहीं तो यही होगा, आपका स्टाफ चेंज हुआ है, एटलीस्ट इन फूड इंडस्ट्री, द मोमेंट योर स्टाफ चेंज, योर एम्प्लॉयज स्विच, और इस इंडस्ट्री में वो बहुत होता है, वो चेंज होगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और जब मैं रिसर्च कर रहा था कैफ़ेज़ की, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ यही मिलते हैं कि पहले जैसा मज़ा नहीं है। हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, अगर कोई बहुत पुरानी शॉप है और फिर उनका मेन जो शेफ़ होता है वो चेंज हो जाता है, तो सब लोग का यही कंप्लेंट होता है कि पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा। And you lose customers, at least loyal customers who keep एग्जैक्टली coming for your एग्जैक्टली, food and आपका service. कोर प्रोडक्ट ही इज़ फूड, Food. राइट। आप कितना भी अच्छा एम्बियंस दे दो, कितनी अच्छी सर्विस दे दो, वो आ तो खाने ही रहा है, राइट, वो तो उसको बेस्ट मिलना चाहिए। इसलिए मैंने भी वो सब सीखा, क्योंकि मुझे वो इतना इम्पोर्टेंट लग रहा था। Are you in profit right now? यस, नाउ वी आर। फर्स्ट 6 मंथ ऑलमोस्ट रेंट का जो अमाउंट होता है, दैट वेंट आउट फ्रॉम माई पॉकेट। ब्रेक इवन भी नहीं हुआ था फर्स्ट 6 मंथ के लिए, नो। वो उसमें काफ़ी मेजर पोर्शन ये भी था कि नहीं पता था कि इस चीज़ को मार्केट कैसे करें, क्योंकि जब व्हेन यू डू अ जॉब, यू हैव सर्टेन रोल्स दैट यू आर असाइंड। आपको बोल देंगे कि आपको ये काम करना है, आप उससे एक स्टेप आगे का देख लोगे, एक स्टेप बाद का देख लोगे, बट आप You wear blinders actually. यस उतना ही यस, करो. उतना तो करना है, राइट। उसके आगे पीछे का नहीं करोगे, देयर इज समवन एल्स हु विल डू इट। बट व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू नीड टू थिंक 2 steps अहेड कि And you क्या are करना है। all-rounder, you have to be all-rounder. हाँ, मतलब मैं ही मेरा मार्केटिंग HR, एजेंसी हूँ, finance, एचआर भी मैं ही tech हूँ, support, सब. सब मैं ही कर रहा हूँ। और वो अच्छा भी है यार, जितना ज़्यादा You learn. यू लर्न, एग्जैक्टली, वो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर अब मैं किसी को सिखा सकता हूँ, दिल टेक माई प्लेस, तो दे नो, दे हैव एन SOP जो मैंने सेट किया है मेरे हिसाब से, कि उनको यही फॉलो करना है।
दैट हैपेंड बिकॉज आई डिड इट फर्स्ट. Yeah. सो सीखना तो चाहिए यार. जब Correct. कुछ भी बिजनेस अगर कर रहे हो तो तुम्हें तो पूरा A to Z आना ही चाहिए. Correct. तो 6 So now months. you're in profit? यस यस. अब वो टेंशन नहीं है कि इस बार कितना, हाउ विल डू दिस मंथ. Because it's a brilliant thing. Leading to this segue, why? Because especially in Baroda, especially in Gujarat, places like Gujarat, places like Mumbai, where food you get every look and corner. You have restaurants, you have cafes, street food, you know, rekdi ka khana and all what people love. मेरे को मिल जाएगा 50 रुपए में 40 रुपए में and I'll fill my tummy. Versus, you know, yeah, I understand customers are different, people are different. Obviously, pros and cons, everything is there. But how would you know, classify the cafe food or cafe prices to say street food, fast food? How is the fast food industry? We can restrict to Baroda, say. सो जैसे आपने बोला बड़ोड़ा में बहुत आपको स्ट्रीट साइड फूड मिल जाएगा और सेम ही चीज़ मिल जाएगी. आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, वो भी पिज़्ज़ा बना रहा है, राइट. अब तो ऐसा भी हो गया, आप पास्ता बना रहे हो, कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा जो पास्ता भी बना रहा है. बट व्हाट आई बिलीव कि लोग कैफे में आते हैं इज क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ योर फूड एंड देन सर्विस, राइट. आप कहीं लारी पे खड़े होकर खाओगे, वहाँ पर आपको सर्विस थोड़ा मिसिंग लगेगा. वहाँ पर इट्स फटाफट खाया, हाँ क्विक फूड, फटाफट खाया और फटाफट चले गए. बट इफ़ यू वांट टू रिलैक्स एंड देन एंजॉय योर फूड, तब लोग कैफ़ेज और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. अब हम वो चीज़ को अलग कैसे करते हैं. सो USP kind of a thing, हाँ. especially for Laris also you can say, or in general cafe industry also. सो इस इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है दैट्स सर्विस. वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है बिकॉज एक बार आप सो फूड इंडस्ट्री सच इंडस्ट्री कि आप एक बार इन्वेस्ट कर दिया, सेट हो गया, यू डोंट नीड टू लुक आफ्टर इट. इट विल कीप ऑन जनरेटिंग मनी. सो व्हाट द ओनर्स डू, दे forget about service part. So if you are not there, you cannot guarantee service to your customer. आप एंड सर्विस में वो बात नहीं कर रहा हूँ कि फूड कितना जल्दी सर्व हो गया, फूड में फूड का टेस्ट कैसा था, Timing, quality, and वो सब तो है ही. बट हाउ यू ग्रीट योर कस्टमर्स, हाउ वेल यू नो देम एंड हाउ वेल दे नो यू. सो मेरे 60%, दैट्स अ बिग नंबर, 60% कस्टमर रिटेंशन है. wow. सो रेगुलर कस्टमर्स आर 60%. तो दैट्स अ बिग नंबर. क्योंकि यूजुअली होता है लोग एक ही जगह पर जा जाकर लोग बोर हो जाते Bore हैं. हो जाते हैं. बट यहाँ मेरे जो कस्टमर्स हैं, दे नो मी बाय माई नेम. उनको पता है कि सो काफ़ी लोग, त्यागी जी आओ हमारे साथ बैठो, त्यागी जी कहाँ थे, आओ कैसे हो, सब. सो वो एक पर्सनल रिलेशन भी बिल्ड हुआ है ओवर टाइम ऑब्वियसली. सो वो एक चीज़ जो है वो बहुत इस इंडस्ट्री में लैकिंग है कि लोग वो पर्सनल टच नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं. और वो लोग को बहुत पसंद आता है. लोगों को, आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ठीक है खाना तो बहुत बढ़िया है हमारा, लोग आएंगे ही आएंगे. बट वो ज़रूरी नहीं है. Yeah. अगर आपका खाना बहुत बढ़िया है बट आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हो, सो वो लोग को दिमाग में वो चीज़ आएगा, यार खाना बहुत बढ़िया है पर वहाँ नहीं, कहीं और ट्राई करते हैं इसका. They वो forget easily. हाँ हाँ हाँ. सो लोग काफ़ी बार ऐसा होता है कि कैफ़े ना सोच के दे कम हियर टू मीट मी, राइट. सो दे आर स्टिल माई कस्टमर, या सो दे आर स्टिल माई कस्टमर. बट वो लोग कहीं भी जाएंगे सोच के बोलते हैं इससे अच्छा जाओ त्यागी भाई के चलते हैं, वहाँ जाके बैठेंगे उनके साथ. सो वो ओवर टाइम बिल्ड हुआ है मेरे कस्टमर के साथ. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं हूँ सो दे कॉल मी कि आज आए नहीं क्या, हम यहाँ वेट कर रहे हैं आपका. सो Nice. और वो बहुत खुशी होती है वो सुनकर कि यार वो मेरे से खास मिलने आए हैं इधर, क्योंकि उनको ये जगह इतनी पसंद आई है, मेरी सर्विस इतनी पसंद आई है, हाउ आई ग्रीट देम वो इतना ज़्यादा पसंद आया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो एक चीज़ है जो हमको अलग करती है. अदर देन दैट, अगर आप अलकापुरी एरिया में देखेंगे, वहाँ पर और भी कैफ़ेज़ हैं. हमारे रेट्स उन सबसे काफ़ी कम है, बट हमको कॉम्प्लीमेंट मिला है कि हमारा पिज़्ज़ा डोमिनोज से अच्छा है. Wow. It's a big thing. Yeah, so It's a we big make our own dough, we make our own base, we don't buy it like other Other cafes. cafes. Yeah. वो यूजुअली प्री मेड ले लेते हैं और उसी पे ही पिज़्ज़ा बना लेते हैं. अलग अलग टॉपिंग्स हो जाती हैं, सब कुछ अलग अलग हो सकता है.
बट हमारा बेस का जो एक टेस्ट है वो इट्स वेरी यूनिक बिकॉज वी आर मेकिंग इट ऑन आर इन आर ओन वे. Yeah. सो उसमें वो जो एक अलग टेस्ट है. सो मुझे काफ़ी पहले मुझे जब फर्स्ट टाइम ये कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे लगा कि बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं. बट फिर वो कॉम्प्लीमेंट मुझे सेकंड टाइम मिला दूसरे कस्टमर से, देन थर्ड. फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पिज़्ज़ा खाने ही आते हैं इधर, राइट. काफ़ी पिज़्ज़ा जॉइंट्स हैं बड़ोड़ा में, बट दे स्टिल चूज अ कैफ़े जहाँ पर पिज़्ज़ा खाने आ रहे हैं वो. सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. It's a big thing. You compare it with Domino's and all. हाँ, सो It's मुझे भी a राइट. सो इट्स दे आर मॉन्स्टर्स इन देयर इंडस्ट्री. उनको बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको हमारा टेस्ट उनसे ज़्यादा अच्छा लगा. सो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. अगर आप किसी जाइंट को उनकी इंडस्ट्री में पीछे कर पा रहे हो, दैट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट. you're in Baroda. I've seen like a lot of new cafes or restaurants open, and within 6 months, 1 year, they vanish. They have to shut down, and वो each other पे कुछ और होता है. So don't you have that fear कि drawback या that is a maybe your challenges with regard to वो पहले था जब शुरू के. सही बताऊं तो 6 मंथ्स में हमारा ब्रेक इवन आ गया था. बट that's very fast in any business touch wood. Because आई वॉज प्लानिंग इन 3 मंथ्स, बट वो नहीं अचीव हो पाया. 6 मंथ्स लग गए. normally saying होती है business में कि first 3 years in the business cycle when you start a business, normally third year पे break even होना चाहिए. ओके. Literally third year पे break even. And then third year के बाद what you start making counts as your profit. So I'm sure you guys, especially the MBAs who've done MBAs, you know, it's a protocol. But see, maybe now times have changed. The things are there. I'm sure 6 months is pretty good. Pretty good for a break. सो मेरा प्लान 3 मंथ्स का इसलिए था बिकॉज मेरी फंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, राइट. मेरे पास जो इनिशियल मैंने प्लान किया है दैट्स इट. अगर तब वो काम नहीं करता तो मुझे फिर कहीं और से फंडिंग अरेंज करनी पड़ती. सो मे बी मैंने ज़्यादा पुश इसलिए किया बिकॉज मुझे पता था कि भाई देयर इज़ अ वॉल अहेड. उससे पहले आई विल हैव टू वर्क समथिंग आउट. तो मे बी दैट Yeah, पुश्ड. that aggressiveness to यस just यस यस. और वो काफ़ी हेल्प किया. जो वो फियर है कि कल उठ के अगर बंद हो गया तो कैसे. सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट you start getting the idea कि how you will do this month, how you will do next month, or how you will do this week or this weekend, because there are other events happening that affects your business as well. There are competitors that affects your business. So but after a point you start getting the idea. So एक पॉइंट के बाद आई थिंक अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ओके, सो रातों रात बंद होना इज इम्पॉसिबल, राइट. ऐसा तो नहीं होगा कल उठ के कोई ही नहीं आ रहा है. हो सकता है वी आर प्रॉफिटेबल राइट नाउ, बट बाद में कोई एक मंथ ऐसा शायद जाए दैट वी बेयरली मेड इट, yeah. और या तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में गया है. बट वो सिर्फ एक मंथ ही ऐसा होगा, राइट. अनलेस वी डिड ह्यूज फंबल, कुछ बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है, फूड क्वालिटी बहुत ख़राब कर दी है, या कुछ सर्विस ख़राब कर दी है जिससे लोग कस्टमर वापस नहीं आ रहे हैं. सो लोग यूजुअली क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नए कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आएंगे ही आएंगे, यू आर श्योर. मुझे पता है कि कल मैं अगर आऊँगा तो मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये लोग तो दिखने ही वाले हैं, वो चेहरे मुझे दिखने ही वाले हैं, वो कस्टमर्स आने ही वाले हैं, राइट. क्योंकि उनका भी एक रूटीन फिक्स हो गया है. तो वो रेगुलर कस्टमर का एक बेस जो बनना चाहिए Yeah. वो सर्विस के ऊपर ही बनता है, राइट. खाना उनको कहीं और भी मिल जाएगा, राइट. कुछ शायद उतना अच्छा ना मिले या शायद उससे अच्छा मिल जाए, बट वो जो कंफर्ट लेवल बिल्ड होता है ओवर टाइम वो सर्विस की वजह से होता है. सो मुझे उतना कॉन्फिडेंस अब आ चुका है कि भाई कल के कल उठ के तो बंद नहीं होने वाला है. सो नाउ आई एम विलिंग टू टेक रिस्क एज वेल. मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, मैं नई नई डिश ट्राई करवाता रहता हूँ लोगों से. Have you changed the menu in 2 years? अ Any लॉट, addition or अ subtraction? लॉट. पहले हमारे पास सिर्फ बहुत बेसिक सी कैटेगरीज थी, वो फ्रेंच फ्राइज हो गया, नाचोस हो गए, मैं इवन मैगी हमने
आई गेस स्टार्ट करने के 1 साल बाद ऐड करी है, मैगी जैसा बहुत बेसिक चीज़। Basic. सो और अब तो हम दिल्ली का स्वाद करके हमारा एक मेन्यू का हेड है जिसके अंदर आपको सूजी की पानी पूरी मिलेगी, Wow. जो नॉर्थ का है। यूजुअली लोग नॉर्थ में वो खाते हैं सूजी की बनी हुई पानी पूरी, गुजरात बड़ौदा में इतना लोग जानते Not नहीं हैं। popular, yeah. हाँ, सो अब वो जो रेगुलर कस्टमर्स कैसे बिल्ड होते हैं पूरे बड़ौदा में, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे अलावा शायद कोई एक एक ही और होगा जो सूजी की पानी पूरी खिला रहा होगा किसी को। सो जो नॉर्थ वाले लोग हैं, जो काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं, दे क्रेव इट, वो टेस्ट उनको नहीं मिल रहा है। सो वो उस पर्टिकुलर पेज के लिए, वो पूरे मेन्यू के लिए आई हैव हायर्ड द स्टाफ फ्रॉम नॉर्थ, क्योंकि वो जो टेस्ट है, राइट, वो एक पर्सनल आप जो शेफ रखोगे उसका एक्सपीरियंस उसमें दिखेगा, Yeah. उसने कैसा काम किया वो उसमें दिखेगा, वो किस तरीके का क्यूजीन बनाता है वो उसमें दिखेगा। सो आई पहले हमने ट्राई किया था कि वील ट्रेन लोकल स्टाफ ओनली, बट इट डिडंट वर्क आउट। उनके टेस्ट में वो हमको पता चल रहा था कि वो वाला टेस्ट नहीं आ पा रहा है, सो हमने बाहर से हायर किया। सो अब वो कस्टमर सेट हो गए हैं, दे नो कि उनको अगर छोले भटूरे खाने हैं तो वो त्यागीज आएंगे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट उनको मज़ा आ गया है। उनको अगर सूजी की पानी पूरी खानी है तो उनको पता है कि कहाँ मिलेगी। सो इस तरीके से रेगुलर कस्टमर बिल्ड होता है। अगर आप कॉफ़ी बना रहे हो, सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी स्टारबक्स जैसी कॉफ़ी है, बट हमारी कॉफ़ी इतनी अच्छी है जो ट्राई करता है फिर वो चाहता है कि वापस वही कॉफ़ी ट्राई करें वापस। हमारी कोल्ड कॉफ़ी इज़ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और लोगों को बहुत पसंद आती है। एंड जैसे उसका प्रेजेंटेशन है और जैसे वो सर्व होता है, जो उसका टेस्ट है, वो समटाइम्स वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इतने कम रेट में कैसे मिल रहा है। बिकॉज मैं जो एक दूसरा कंसर्न कस्टमर्स का होता है, एंड वो रेगुलर कस्टमर को सबसे ज़्यादा दिखता है कि आप रेट्स जब बढ़ाते हैं तो उनको दिखेगा। सो मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ यार कि हर महीने में रेट्स बढ़ा दिया, जस्ट बिकॉज आई नो दैट दे आर लविंग इट, राइट। आप हर महीने नहीं बढ़ा Yeah, a सकते। lot of people do that. कि ये popular dish है, signature dish है, हाँ, ये सो तुम इसको बढ़ा दो। बढ़ा दो. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉपुलर डिश है उसका रेट वैसा ही रहने दो, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी लविंग इट। वो जितना ज़्यादा जाएगा मार्जिन ऑलरेडी बढ़ It's a जाएगा। volume game it is. यस यस यस। सो अभी एक कस्टमर महीने के 30 दिन आ रहा है या एक कस्टमर महीने के 5 ही दिन आ रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो चीज़ कंपनसेट कर देती है रेट्स के लिए, तो इसलिए हम उसको रेट्स को इतना कॉम्पिटिटिव रख पा रहे हैं। Yeah. So, This one more thing I was curious to ask, like this industry is 365 days, and especially if there's holiday, there is weekend, it is even more. I'm assuming, how, like, how do you cope up with that thing? I'm sure because you, as a owner or a person, or even your staff, for instance, they might need breaks. They need holidays. Your industry has no holidays. उल्टा holiday पे ज़्यादा काम रहता है. हाँ, so अगर Were you prepared mentally for that? And no 2 years में कैसा था? What is a season time if you have any months? नो सो एज सच अब कोई ऐसा मंथ नहीं है जहाँ पर क्राउड कम होता हो। ऑब्वियसली अगर नवरात्रि का सीज़न है सो हम लोग लेट नाइट ओपन रखते हैं, एंड जो पूरा दिन का You need रेवेन्यू, permissions for that? यस यस वी नीड परमिशन। गुजरात में चाहिए, अगर आप 2 बजे तक 3 बजे तक खोल के रख रहे हो तो यू नीड परमिशन फॉर दैट, और वो हम परमिशन लेके ही फिर 9 दिन के लिए यस रखते हैं, 9 दिन या 10 दिन जैसे भी है। सो वो दिन पर बहुत ज़्यादा आपको जंप दिखेगा, या दिवाली का दिन हो गया That's तो what I'm saying. बहुत ज़्यादा Some जंप festive दिखेगा। seasons and some seasons, cafes industry, horeca industry is anyway booming. ट्रू ट्रू। So सो अब isn't it tiring for you? It And is. for staff also, probably they also have to have their families and celebrate with them. We are It is. backup कि कोई छुट्टी पे गया हम्म night chef. सो ऐसा है कि उन दे हैव डिसाइडेड कि विल टेक विल डेफिनेटली टेक अ लीव ऑन उत्तरायण, बट इट्स फाइन इफ यू डोंट गेट अ लीव ऑन नवरात्रि or half days of Navratri. I don't play that much, so I don't need a leave. So they compensate it like that. Or and for me, you're asking that if it's tiring or not. It's not. Why? Because you when enjoy you it. see your baby growing, so this is my baby, right? Yeah. मैंने मेरे पास स्टिल वो फोटोज हैं जब यहाँ पर कुछ नहीं था, राइट, इट वाज ब्लैंक स्पेस।
वॉल पे कुछ नहीं था, नीचे फ्लोरिंग पे कुछ नहीं था, पेंट बहुत ख़राब हो चुका था। एंड अब मैं इस जगह को देखता हूँ, तो मैंने वो हर एक स्टेज देखी है, और इट्स वेरी सेटिस्फाइंग बिकॉज यू नो फ्रॉम डे वन कि पहले कैसा था और अब कैसा अब है। कैसे? मैं मैंने डे वन पर यहाँ पर झाड़ू खुद लगाई है, क्योंकि तब मैं ही आया था देखने के लिए, और मुझे ऐसे बहुत गंदा हुआ था, तो क्योंकि कोविड से पहले बंद हो गई थी ये जगह, तो तब से ये खाली ही थी। So, I heard that now you are planning to enter catering industry also. So, why that thought? Are you taking a cafe to people? Something like that. You're reaching out there, and within it's a brilliant thing. And I'm curious because 2 years down the line, you've decided it कि चलो अब catering में जाते हैं. And what triggered that? Okay, so Joe, the thing that we talked about earlier, okay, you need to first settle your first business, then you can move ahead and Yeah. focus on something else. Yeah. So I trained my staff uh, that they can handle the whole cafe on their own, even if I'm absent, right? And that's necessary because कभी ना कभी तो आप भी बीमार पड़ोगे, कभी ना Yeah. कभी आपको भी छुट्टी लेनी होगी. So that's important. So अब I have enough bandwidth with me Yeah. that I can focus on something new. So ये केटरिंग का आइडिया कहाँ से आया इज जब हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ था दिस कैफ़े को, आई वांटेड टू गिव बैक. सो बहुत ज़्यादा तो नहीं दे पाए क्योंकि तब भी वी वर नॉट प्रॉफिटेबल. ब्रेक इवन आ गया था बट प्रॉफिटेबल नहीं थे. सो वी डिसाइडेड टू डोनेट लंच बॉक्सेस. सो हमने रोटी सब्जी दाल चावल थोड़ा अचार वो पूरा खुद प्रिपेयर करके, और 400 बॉक्सेस भी डोनेटेड. हमने खुद जाके डोनेट भी किया था सबको, जो भी रोड साइड पर लोग होते हैं और दे नीड द पीपल हु नीड इट. सो वी डिड दैट. एंड जब हमने फिर उसका कॉस्ट निकाला, एंड it was very minimal. So compared to the cost that you need to incur to make a pasta or pizza is kind of high than roti sabzi in India at least. Okay. So वो cost मुझे लगा कि it's feasible, it's doable. वो cost के साथ you can work with. But I did not have the team for it. Cafe वाली team के साथ you cannot do it. It's a completely different. It's food industry but it's completely different. पूरा दिन एक ही दिन का, पूरा खेल एक दिन का है. Yeah. राइट वो एक दिन में ही आपको प्रिपरेशन करनी है, केटर सर्विस भी देनी है, एंड सो राइट वो Yeah. बहुत Yeah. ज़्यादा हेक्टिक होता है और बड़े स्केल पे होता है. Yeah. सो वी started doing events जहाँ पर we needed more staff for those events. We set up our stalls and everything. So वहाँ पर when we did that, I met with people, different people, and they had 10 to 12 years of experience in catering. Wow. So we bonded, and हमने फिर पूछा कि how long you have been working, क्या experience है ऐसा. So अब हमारे पास एक ऐसी टीम है कि हम केटरिंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं. Wow. बिकॉज केटरिंग इंडस्ट्री इज नॉट लाइक अ कैफे. पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, राइट? अगर किसी को पता है त्यागीज कैफे, त्यागीज ईटरी कैफे अलकापुरी में है, दे विल सर्च इट ऑन गूगल एंड दे विल कम हियर. Yeah. बट केटरिंग में ऐसा नहीं होता. योर प्रोडक्ट इज योर बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. वर्ड ऑफ माउथ इज द ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स. Yeah. राइट आप कितना भी सोशल मीडिया पर मार्केट कर लो, कितने भी एड्स चला लो, लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे. अगर then अच्छा refer. हुआ, या अच्छा हुआ तो यू विल गेट गुड पब्लिसिटी, खराब हुआ तो यू विल नेवर गेट ऑर्डर्स. बिकॉज लोग बात करेंगे, राइट? अभी 300 लोगों की 400 लोगों की शादी है, वहाँ पर दे ट्राइड आवर फूड बट दे डिडंट लाइक इट. बड़ोड़ा इतना सा है, हर कोई किसी ना किसी को Yeah, जानता ही है, जानता है, राइट? correct. मतलब ये इसको नहीं जानता होगा तो ये इसके थ्रू इसको तो जानता ही होगा. Yeah, yeah. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसमें. Yeah. सो हम लोग को जाना तो ये काफ़ी पहले से था इस इंडस्ट्री में, बट उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, उतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं था कि हम इसमें भी जा सकते हैं कि नहीं. क्योंकि एक बार गए और ट्रायल एंड एरर किया और ख़राब हो गया, तो आपको ज़ीरो से नहीं माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेपुटेशन So ख़राब हुई है branding, yeah. वो वापस बिल्ड करनी पड़ेगी, रीबिल्ड करनी पड़ेगी. सो अब वी हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और लकीली वी गॉट 2 ऑर्डर्स एज वेल. अभी तो Oh, हमने इतना nice. मार्केटिंग करना स्टार्ट भी नहीं किया है, सो अभी वी आर नॉट आउट देयर.
कि we do catering But in services. our continent, actually, see, catering, sometimes we don't even remember the name of caterers. हम्म, It's just that इसकी शादी है, इसके function हाँ में वो हाँ आया था हाँ, ना उसका cafe खाना वाला, बढ़िया था. उसका like I don't remember like and हाँ याद तब रहता है when it's like number of years of catering. हाँ Then you know एक set बन जाता है कि you know XYZ catering को बुलाते हैं हाँ times. हाँ हाँ. So this सो is वो जो देर आर बिग प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, और इसमें कैफे जैसा नहीं है कि इतने सारे लोग, बहुत सारे कैफेज हैं, ऐसा नहीं है. कुछ बिग प्लेयर्स हैं एंड दे डोमिनेट द इंडस्ट्री क्योंकि उनका नाम इतना ज़्यादा हो गया है. सो अच्छा, सो कस्टमर्स के पास, क्लाइंट्स के पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है कि जहाँ पर दे कैन सर्च कि yeah कौन कौन से yeah केटरर्स हैं. we don't have दे yeah. जस्ट आस्क It's all somebody word else of कि mouth. तुम्हारी शादी में कौन केटरर आया Right, था, right. तुम्हारे इस फंक्शन में कौन केटरर था, And एंड देन दे बड़े कॉन्टेक्टेड. caterers, what I know, I've seen also lot of because requirements होती है कि मेरे function, मेरी शादी या मेरे whatever में ये चाहिए. Now he wouldn't be expertise in that. He outsources. यस यस यस. He collabs कि यार मेरा ये हो रहा है, तेरा काउंटर लगा रहा है. हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो ये केटरिंग सर्विसेज होती हैं, ये सब कुछ वो खुद ही एक इंसान करता है और वो सब खरीद के रखना पड़ता होगा उसको, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा है. और अभी मैं उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने वो चीज़ भी थोड़ा ऐसा हो गया, यार करें कि ना करें, कैसे करेंगे. बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन इट, आई रियलाइज कोई खुद से कुछ कर ही नहीं रहा. राइट, क्योंकि आपको अगर टेबल्स चाहिए तो आप खरीद के नहीं रखोगे, यू विल आउटसोर्स इट. टेंट चाहिए, यू विल आउटसोर्स इट. फूड, हाँ चलो, वो आपका एक मेन प्रोडक्ट है, तो वो आप ही प्रिपेयर करोगे, वो आप ही सर्व करोगे. बट वो ही है. सो जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, दे हैव इनफ इन्वेस्टमेंट कि वो अपनी टेबल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के रख सकते हैं. Yeah. बट आप खुद भी वो कर सकते हो, यू कैन रेंट इट आउट. You can learn. Yeah. जो देयर आर बिग प्लेयर्स बट देयर आर स्मॉल प्लेयर्स एज वेल. हाउ आर दे डूइंग इट? राइट, छोटी शादियां भी होती हैं, उसमें उसमें बड़े क्रिएटर्स नहीं जाते हैं. सो वो क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में आया कि छोटे क्रिएटर्स हैं, वो कैसे करते हैं, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा. Correct. सो वो Correct. थोड़ा रिसर्च किया, लोगों से मिला, जो पार्टी प्लॉट्स और फार्म्स और जहाँ पर ये सब फंक्शंस होते हैं वहाँ पर गया, उनसे मिला कि कैसे होता है, कैसे करते हैं. सो उन्होंने भी बताया. सो वो धीरे धीरे 10 लोगों से मिला, 10 चीज़ें पता चली, तो आई रियलाइज कि इट्स डूएबल. सो जो 2 ऑर्डर मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं कि दे केम टू दिस कैफे, दे विजिटेड एंड दे लव्ड आवर फूड. एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि हम केटरिंग इंडस्ट्री में भी आने का सोच रहे हैं एंड वी आर इनटू इट. तो उन्होंने बोला, अच्छा हमारा ये फंक्शन है, आप उसमें कर देंगे, इस डेट को है. क्योंकि उनको अभी उन्होंने खाना टेस्ट किया, राइट, उनको यहाँ पे एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भाई इनका खाना अच्छा है, वहाँ पर भी अच्छा ही देंगे. फिर हमने उनकी टेस्टिंग करवा दी, तो उनको वो और पसंद आया. सो देन दे बुक्ड अस, तो वो फाइनलाइज हो गया. सो अभी ऐसा है कि जो यहाँ पर आते हैं उनको बताते हैं, बट नाउ विल बी मोर अग्रेसिव कि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज़्यादा एटलीस्ट इंक्वायर करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप तो वही है. Yeah. सो उसके बाद फिर वो वर्ड ऑफ माउथ वाला मार्केटिंग स्टार्ट होगा. बट फर्स्ट स्टेप, सो यू विल हैव टू अग्रेसिवली मार्केट योरसेल्फ. Definitely. And in a city like Baroda, where obviously because of MS, you know, a lot of youth crowd is a lot in Baroda. And now Gen Zs are anyway, they have all their parties, be it 18th birthday or a lot of other things, and people spend now. The whole generation. That Yeah. apart from wedding is classic. All those यप functions. यप यप यप. ये भी है youngsters thing. सो हमारा जो लीफलेट है, जो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, सो वो भी मैं एक्सपेंस बचा लेता हूँ, खुद ही डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं. Good. Proper business. हाँ, सो उसमें हमने मेंशन ही किया कि वी डू इट ऑल, बी इट योर वेडिंग, बी इट योर स्मॉल फंक्शंस, बी इट कॉर्पोरेट इवेंट्स, बी इट बेबी शावर, बी इट फैमिली रियूनियन, सब फंक्शंस में वी डू इट. क्योंकि एक सेटअप वी ऑलरेडी हैव. अगर छोटा फंक्शन भी है तो उसके लिए हमारे पास ये सेटअप ऑलरेडी है, तो इट्स डूएबल फ्रॉम आवर साइड. सो बिजनेस कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए. अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, तुम्हें सिर्फ उस डायरेक्शन में एक बार सोचना है. इट्स डूएबल. अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 11वां भी कर ही सकता है. Correct. राइट. सो वो सोचने का कोई पॉइंट नहीं है कि कैसे होगा. रिसर्च करके देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे ऐसे और लोग कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो. रिसोर्सेज की कमी है, देखो वो कैसे अरेंज हो सकता है. तो कुछ चीज़ें हैं, 10 जगह आप पूछोगे ना, लोगों से बात करोगे ना, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट. कहीं ना कहीं से यू विल गेट समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. और स्पेशली जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं,
जिनके पास वो बैक सपोर्ट नहीं नहीं है है। सिखाने के लिए, just go out there, talk to people. Networking is Networking everything. is everything. आप जितने ज़्यादा लोगों को जानोगे, you will have more access to the knowledge, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा हुआ है, राइट? So like we should not shy approaching people or कभी hold नहीं, back ourselves कि क्या कभी नहीं, सोचेगा क्या. कभी नहीं, Just कभी go नहीं. out there. It honestly helped me a lot, क्योंकि मुझे मुझे जो मेरे फैमिली वाले हैं वो बोलते हैं कि ये तो किसी से भी गप्पे लड़ाना शुरू कर देता है, बट मुझे पता है दैट्स सो इम्पोर्टेंट. That is a skill by itself. Not everyone can go out there. So yeah, and business without networking doesn't work. Yeah, exactly. You know. So So yeah, so yeah, I get that. networking plays a major role. Now, in this, I'll end the segment. I want to know now what is the road ahead for Tyagi's Cafe, and yeah, one I'm sure it's the catering. Parallelly, you're doing that, so that's the few present and near future for you. But for cafe, what next? What have you thought? Do you have any vision in mind with regard to this? Say, maybe an outlet or Hmm. just growing within this So branch? अगर सिर्फ कैफे की ही बात करें, so I have planned to roll out franchise model, right? Franchise. Yeah. So उसमें भी ऐसा है कि if XYZ person takes franchise of Tyagis Eatery, Yeah. first 2 or 3 months I'll personally visit the cafe and I'll personally help that person out to streamline it. रिसोर्स प्रोक्योर कैसे करना है, या रेसिपीज क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पर है एटलीस्ट वो टेस्ट तो पूरा उधर होना चाहिए. इंटीरियर में कैसे हेल्प करना है, पूरा एक उनको रेडी करके. सो जो Yeah. चैलेंज मैंने फेस किया है कि कुछ आइडिया नहीं है इस इंडस्ट्री का, मुझे पता है कि सामने वाला जब उसमें घुसना चाहेगा तो So उसके you दिमाग में वो guide क्वेश्चन them आएंगे. यस. initially. So वो एक प्लान है कि franchise model will roll out, and on that every part of initial stage I'll be there All to the guide them. places to set up your desk. Yes, yes, yes. उनको मेन्यू कैसे रखना है और कैसे रेसिपीज एंड एवरीथिंग. वो एक जो इनिशियल So चैलेंजेस जो having a होते हैं. similar taste, if this is the main thing, the original Gyalis. So you train the chefs, then Yes, you yes, tell yes. them, वो भाई सबका इतना ही रखो, measurement एक ही रखो, हाँ, हाँ, X. हाँ. So plan for Tyagi's Eatery Yeah. itself. The name. So not talking about the catering business or the other business that I'm doing apart from Tyagi's Eatery. So Tyagi's Eatery का आगे का plan ऐसा है that we'll roll and we'll go into the franchise model. Yeah. So वहाँ से You will. give a personal touch. यस, यस. सो जो ट्रेनिंग है पूरे Yeah. उसकी, और जो Yeah. स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक यू नीड सम गाइडेंस, आई विल बी देयर. सो Yeah. आई विल पर्सनली विजिट that cafe, and I'll guide the staff, I'll guide the owner of that place कि कैसे क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस ध्यान में रखने हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हाउ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस. सो वो एक आगे प्लान है कि फ्रेंचाइज मॉडल में घुसना है अब. एंड apart from this Tyagis Eatery Cafe and catering business, I'm also trying to enter into home decor. वो थोड़ा अलग है इस इंडस्ट्री से. सो दोनों ही इंडस्ट्री फूड वाली हो गई है, केटरिंग हो या कैफ़े हो, बट ये थोड़ा अलग है. सो वो जो हमारा इंटीरियर है इसका डिज़ाइन मोर और लेस मैंने ही किया है. थोड़ा आप ऑनलाइन से बहुत कुछ यू कैन गेट अ लॉट फ्रॉम इंटरनेट. Yeah. सो वॉल पर हमारे प्लेट्स लगी हुई हैं, Yeah. जो बोन चाइना प्लेट्स Yeah. होती हैं. सो उसके ऊपर वी मेक डिज़ाइंस, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोरिंग फ्रेम्स वी यूज़ दीज प्लेट्स. सो वो एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट था रेगुलर फ्रेम्स की जगह पर, जो कैफ़े में लगी हुई भी हैं. सो यू कैन सी कि So कैसा that, है. yeah, that's a different segment. So हाँ, बट उसमें भी अब हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं घुसने का. have you ever thought, just last question, because uh, I like this industry in here because, as you said, once upon a time in Abhibi, I always wanted to have cafes and my thing, and I also am that. I've done extensive research myself, so now what things are happening is two things. एक तो cloud kitchen का concept बहुत चल रहा है. Haven't you thought that? That's my first question. And just follow up. Last question is,
सस्टेनेबल किचन्स बहुत चल रहे हैं आजकल एंड पीपल आर गेटिंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो. तो अभी लोग सस्टेनेबिलिटी वेस्टेज कम करो, ऐसे ये करो. एंड इवन द फेमस शेफ्स, Michelin star chefs or model chefs also are promoting that. It's coming boiling down to saying desi tarike, desi equipments, giving more flavor. Haven't you thought of that? Like cloud kitchen. आपका आप फ्रेंचाइजी बोल रहे हो, ग्रेट. I'm obviously but on the flip side, because I am basically from Bangalore, and Bangalore में there are a lot of cafes and outlets. Like एक एरिया में like सिर्फ क्लाउड किचन है. They serve टाइम आप जोमेटो स्विगी करते रहो, फिर True. डंजो है and lot of other local courier services. People know people because आजकल people do come to cafes. It's a different vibe only बाहर निकलने का. There are people, so corporate people, ये कि मेरे को चाहिए. I'm craving for this. I'm craving for त्यागी's pizza. So मैं टाइम नहीं आने के लिए. So I'll go. So if you have cloud kitchen, because सो it's क्लाउड किचन तो अभी नहीं है, बट जोमेटो और स्विगी पे ऑनलाइन हम लोग अवेलेबल हैं. सो अगर किसी को वहाँ से ऑर्डर करना है, दे कैन. क्लाउड किचन में हम लोग अभी इसलिए नहीं घुस रहे हैं क्योंकि ऑनेस्टली मैंने अभी उस तरफ उतना सोचा नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग सेटअप चाहिए. राइट, वो उधर एक अलग सेटअप, एक अलग स्टाफ, एक पूरा सेटअप अलग चाहिए. सो उस तरफ मैं अभी उतना इंक्लाइन नहीं हूँ. setup is different, but your investment is very limited. No, आपको ये सबका खर्चा ही नहीं है. You just have to have a kitchen altogether. No sitting, no dining. हाँ, Yet कर सकते हैं. service oriented, proper food talks वहाँ पे तो फिर. हाँ. Your packaging, how hot you are serving, and it's reaching to one point. हाँ, सो हम वो कर सकते हैं, बट अब मैं 2 जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. सो फ्यूचर में मे बी वी विल, बिकॉज़ वो भी एक नया वेंचर होगा, राइट? सो आपको उसको भी उतना टाइम देना ही पड़ेगा. टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स. वो आपको देना ही पड़ेगा. सो अभी अगर मैं 3 चीज़ें ऑलरेडी देख रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तीनों में ही सही से टाइम ना दे पाऊँ. अभी जैसे ये त्यागीज़ ईटरी सेटल हो गया है. जब बाकी के 2 सेटल हो जाएंगे या होने वाले होंगे, देन वी कैन फर्दर एक्सपांड. थोड़ा और अलग, जैसे क्लाउड किचन आपने बोला, थोड़ा उसमें भी और जा सकते हैं. वो ज़्यादा इजी होगा उसमें एंटर करना, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस. तो वो थोड़ा इजी होगा. बट अभी मैं उस तरफ फोकस ही नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम मुझे नहीं लगता कि मैं अभी दे पाऊँगा. तो अभी एकदम फुल फोकस मोड में जिसमें हम चल रहे हैं वो केटरिंग बिजनेस को लेकर है, क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया है और उसको इनिशियल अटेंशन काफ़ी चाहिए. तो उसको मैं अभी पूरा अटेंशन उसको देना चाहता हूँ. फिर उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट Do क्लाउड you किचन plan और to add सस्टेनेबल. some healthy stuff in your menu anytime in future? Uh, Because people now are pretty much हाँ. tasty भी चाहिए पर health conscious भी है. हाँ. I don't want to eat much junk. और आजकल तो I'm vegan, मेरे को I don't want cheese, I don't want this. हाँ. You So think कि one segment you might put? सो इतना कस्टमर्स का इंक्वायरी आया नहीं है. सो लोगों का जब इंक्वायरी आया कि आप सैलेड्स भी रखिए, सैलेड्स क्यों नहीं रखते, सो वी एडेड सैलेड्स, क्योंकि उसका इंक्वायरी उतना था. So सो based on feedback and यस, क्योंकि इट्स मोर रैशनल डिसीजन टू टेक, क्योंकि यू नाउ नो कि पीपल वांट इट फ्रॉम यू, राइट? दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस फ्रॉम यू. सो वी कैन, राइट? उसमें ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर होगा कि पसंद आया नहीं आया. इवन उस तरीका का ऑडियंस हमारा है भी या नहीं, वो एक क्वेश्चन तो हट ही जाएगा, बिकॉज दे आस्क्ड फॉर इट एंड देन वी केटर, राइट? सो जैसे बर्गर भी पहले नहीं थे, तो लॉट ऑफ कस्टमर आज के बर्गर भी रखना स्टार्ट करो ना, एंड वी स्टार्टेड. अब वो भी काफ़ी अच्छा हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है बर्गर, जो लोगों को पसंद आने लगा. सो वो फीडबैक पे ही हमने डिसीजन लिया कि ये चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. सो ज़्यादातर बिकॉज इन द एंड कस्टमर को जो चाहिए वो तो उसको मिलना चाहिए, राइट? सो अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ भी यहाँ पर मिल जाए तो बढ़िया. सो वी ट्राई कि रेसिपीज ट्राई करते हैं कि क्या हम उतना अच्छा दे भी पाएंगे. सिर्फ ऐड करने के लिए ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज उनको फिर पसंद नहीं आएगा एंड दे वोंट आस्क फॉर इट अगेन. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या वी वी कैन डू इट, उनको इतना अच्छा दे पाएंगे कि उनको पसंद आया वो वापस ट्राई करें. अगर हाँ, तो वी एड इट टू द मेन्यू. अगर हमने ऐसी ऐसी रेसिपीज ट्राई करी हैं
जो लोगों को चाहिए थी, बट हम उस रेसिपी को उस लेवल, एटलीस्ट मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये हम दे सकते हैं, तो वो हमने फिर होल्ड पे रख दी उसको, साइड नहीं किया बट वो होल्ड पे रख दिया। वापस एक दिन निकालेंगे बढ़िया टाइम, वापस इस पे रिसर्च करेंगे व्हाट वी आर लैकिंग, क्या हाउ वी कैन मेक इट बेटर। यस यस, कस्टमर की प्लेट में जाने से पहले ट्रायल एंड एरर कर लो, क्योंकि And तब, you be confident of हाँ हाँ, अगर मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे प्रोडक्ट में, मैं दूसरे को कैसे पिच करूँगा। makes sense. Okay, lastly, you have any message to give to youngsters or anybody who wants to start? या फिर like you job कर रहे हैं and सोच रहे हैं कि you know they are fearing or holding back to some reasons, you know, if you just want to throw some insights or any message to listeners. सो मुझे ऐसा लगता है कि द मेन रीज़न पीपल डोंट वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इज बिकॉज दे डोंट वांट टू सेक्रीफाइस द स्टेबल इनकम। वो उनको एक डर रहता है कि यार अभी एटलीस्ट जैसा भी है एक स्टेबल इनकम तो आ रहा है। सो एज आई सेड अर्लियर कि दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। मेरा ट्रिगरिंग फैक्टर ये था बिजनेस स्टार्ट करने का कि इतना मेहनत अगर मैं किसी और के लिए कर सकता हूँ तो अपने काम के लिए तो कर ही सकता हूँ। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, द मोर एफर्ट्स यू विल पुट इन, द मोर यू विल गेट। योर एफर्ट्स विल नेवर गो वेस्ट। आप किस्मत विस्मत के भरोसे मत बैठो। तुम्हें लगता है यू वांट टू डू समथिंग, डू इट, प्लान इट आउट प्रॉपरली, एग्जीक्यूट इट, और अपने एफर्ट्स डालो। जितने एफर्ट्स डालोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। दैट्स द होल पीरियड, दैट्स द होल पॉइंट। सो दैट्स इट, इफ यू वांट टू डू समथिंग डू इट। और अगर नहीं चला तो यार एटलीस्ट यू वोंट रिग्रेट कि ट्राई भी नहीं किया। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यार इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन, planning to start something on your own, do it, and you'll feel lot better when you see it happening, right? Growing and happening. Yeah, आपको धीरे धीरे you'll realize कि हाँ यार ये it's working out, चीज़ें धीरे धीरे you can see कि कहाँ जा रही हैं, so and that will feel good. Great. Thank you so much for giving us your time. Thank you And for having me. to all the listeners, please hop into the eatery if you're in Manila, Gandhi's Eatery, and check it out. And if you have anything, you know, please drop in your comments. Okay, you're there on Insta. Yes, Gabby yes, is there yes. on Insta, and all. Please check it out. Okay, like, follow, and also please any questions you can ask. If you are wanting to heading in Horeca industry or whatsoever, do comment us. Okay, we'll try to help you out with it. Okay, thank you so much. Thank you. Bye.